मैं देखा 36 रुपीज, जब 36 रुपीज रेट हुआ, जब 38 रुपीज होने की बातें चल रही थी लास्ट 2 मंथ्स में, 2% प्रोडक्शन ऐसे ही बढ़ गया, फीडिंग प्रॉपर हुआ। एंड फार्मर के अंदर फीड द एनिमल कि मेरे घर की गाय है, ठीक है, बाहर से देखने के लिए दैट ऑल इज ओके। Speaker he does not require any introduction. He is one of the noted figure. He is from Schreiber Foods, Dr. Anil Kavtekar. So he is head milk procurement from Schreiber Foods, and he is a veterinary graduate with management, and he is expert on milk procurement and agribusiness. Thank you, Suresh. First of all, I am thankful to Vincent Media for organizing this event, where everyone can participate, express their views. It's like mitochondria to get the knowledge, and I am fortunate to talk here on the topic which is most likely everyone would like to see as getting something out of it. The basic reason जो इसका जो मैं बोल रहा हूँ, making sustainability profitable, तो इसके बारे में जब हम बात करते हैं तो उसका दो ये है रीजंस है। पहला रीजन ये है कि इफ वी विल आस्क फार्मर टू स्पेंड ऑन द सस्टेनेबिलिटी, इट इज इम्पॉसिबल। एंड वेरी रीजन इज दैट ही इज ऑलरेडी हैज थाउजेंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स। बट दूसरी बात है, आप जो भी कर रहे हो उसमें आप सस्टेनेबिलिटी देखो। इट्स ए नीड ऑफ आवर एटलीस्ट स्टेट लाइक महाराष्ट्र। You may be knowing that Maharashtra farmers are getting lowest rate in the country. If you go to Punjab, it's 5 rupees per liter more. Suppose now state rate is state milk rate for the cow is 36 rupees. In Punjab it is 42 rupees. Rajasthan it is 38-39 rupees. And that's why Maharashtra is developed as a commodity hub. So all over India people are coming to Maharashtra to source milk volume at low price. And secondly, हम अगर पैराडाइम देखेंगे कि महाराष्ट्र where the Maharashtra stands, 5th or 6th state in total milk production. Total milk production is 4 crore liter per day. So 2 crore liter is sourced for the business, different dairies. उसमें से requirement is 85 to 90 lakhs. So local consumption ये सब जाने के बाद भी हमारे पास 60-70 lakhs liter milk per day in excess, and Maharashtra alone has a milk processing capability to convert the milk to SMP to the tune of 1,700 metric ton per day. तो फार्मर को रेट कम मिल रहा है, बॉटम लाइन। तो आज का जो टॉपिक है तो दैट इज वेरी 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 रिलेवेंट, क्योंकि मार्केट प्राइस फार्मर के हाथ में नहीं है। इवन इफ यू आप सुबह से देख रहे थे, वी लिसन टू अमूल पीपल, गुजरात में मिल्क रेट कभी कम नहीं हुआ है, ऑलवेज एटलीस्ट 2-3% तो बढ़ा है। आई आल्सो वर्क विद अमूल, ऑलवेज गोइंग अप। सो महाराष्ट्र का प्रॉब्लम है, तो दिस इज गुड फॉर द महाराष्ट्र फार्मर्स। Most of the farmers don't see anywhere, very few they think representative, but the industry is there. We can think of giving the sustainable solution to the farmer. And दूसरा मैं खुश हुआ था वर्ल्ड बैंक को सामने देखते हुए। वर्ल्ड बैंक इज बिफोर अस, so I am expecting, but उनका loan distribution pattern is different. So after again, any on the latter part. So I will take you through the little journey on where we are and where we wanted to go. So this is a world scenario. As I briefed you, India is the world's #1 milk producing country, contribute to 24% of total milk production. You can see here this milk production is going up, and you can see here growth of the milk, this thing, that is the milk production 11% है, per capita consumption growth 8% है।
this growth is coming mainly from the huge animal population what we have. So though we are growing, but if you see our animal population and per capita milk consumption, though it is growing, but and secondly, apart from that, export is marginal. We hardly export 3 to 4% of the total milk production, and it is mainly because of the quality of the milk. That I will come to the topic later. तो देखिए, this is the sustainability. आप देख सकते हो मिल्क प्रोडक्शन 2024 में 982 मिलियन है वर्ल्ड का, इंडिया का 239 है, 24%। मिल्क प्रोडक्शन ग्रोथ रेट वर्ल्ड का 1.4%, इंडिया का 3.8% है। दैट वी शैल दिस इज प्राउड ऑफ इट। एवरेज मिल्क के यस दिस इज प्रॉब्लम। डेवलप्ड कंट्रीज का 35 लीटर पर काउ है और हमारा 8 लीटर है। 8 लीटर भी तो मैं बोलता ज्यादा है। आप अगर ये देखेंगे कि बोहन पॉपुलेशन जितना गाय भैंस इंडिया में है 30 करोड़ है ऑन फिगर, ओके। एंड मिल्क प्रोडक्शन जो हम बोल रहे 239 मिलियन मेट्रिक टन पर डे अगर हम निकालेंगे तो इट इज 60 करोड़ लीटर। तो जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ आपको कि ये 8 लीटर है, वो 8 लीटर नहीं है, 3-4 लीटर ही है। इसलिए सस्टेनेबिलिटी में पहला क्या चाहिए फार्मर को? राइट फीड, राइट ब्रीड, राइट मैनेजमेंट, राइट डिसीज कंट्रोल। देन ओनली दिस मिल्क प्रोडक्शन कैन गो अप एंड द लिमिटिंग फैक्टर इज काउ। और दूसरी बात मैं बताऊँ आपको कि अमेरिका का जो अमेरिका इज नंबर 2 इन मिल्क प्रोडक्शन, 100 मिलियन मेट्रिक टन प्रोड्यूस करते हैं। उनके पास 25,000 फार्मर्स है और हमारे लिए 239 3 टाइम मोर मिल्क के लिए मोर देन 10 करोड़ फार्मर्स आते हैं। तो हियर आज का जो टॉपिक जो ये रिलेवेंट है इसलिए है कि हमको सस्टेनेबिलिटी करना है तो फार्मर का लाइवलीहुड बढ़ना चाहिए एंड मिल्क रेट तो बढ़ने वाला नहीं है। जो भी फार्मर को हमको सिखाना है, जो मेंटरिंग करना है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करने के लिए उसके साथ बात करना है। इसलिए टुडे सेशन इज मोर दिस थिंग एंड द की टेक आप अगर देखेंगे इंडिया इज नंबर 1 इन मिल्क प्रोडक्शन, लैकिंग बिहाइंड द कैटल एंड हर्ड साइज। कंसिस्टेंट ग्रोथ है, हर्ड साइज कम है और आप एक्सपेक्ट भी मत करो कि इसमें कोई ड्रामेटिक चेंज होगा। आप अगर देखेंगे कॉस्ट ऑफ मिल्क प्रोडक्शन, सस्टेनेबिलिटी का इतना जरूरत है कि एज पर माई स्टडी इन महाराष्ट्र, मैंने 140 फार्म का डेटा का स्टडी किया। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज रेंजिंग फ्रॉम 21 रुपीज पर लीटर टू 46 रुपीज पर लीटर। द मेन फैक्टर इज ओनली मिल्क प्रोडक्टिविटी। जो मैं आपके साथ बात कर रहा था कि 8 लीटर का जो है, तो जो फार्म में ऑर्गेनाइज फार्म में 20-25 काऊ का, जहाँ पे 20 लीटर पर डे एवरेज है फार्म का, वहाँ पे 20 रुपीज पर लीटर है। बट जहाँ से आप जैसे ही मिल्क प्रोडक्टिविटी कम होता है तो वहाँ प्रॉब्लम आ जाता फार्मर को, करूँ तो क्या करूँ। लेट अस गो अहेड विद दैट। सो जस्ट इट्स अ कंपैरिजन विद दिस थिंग डेवलप्ड वर्ल्ड। यू कैन सी 11,000 kgs पर काउ पर ईयर, 3,200 पर kg पर ईयर, बहुत ही कम है। रीजन फॉर लो इज जो सुबह से जो बात कर रहे थे, DMR चाहिए, मैनेजमेंट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो ये रीजन है कि बॉडी साइजिंग एनिमल का बहुत बॉडी स्कोर ही कम है। और मैंने तो ऐसा देखा है कि एनिमल्स आर बीइंग फेड, काउज आर बीइंग फेड डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट रेट। मैं देखा 36 रुपीज, जब 36 रुपीज रेट हुआ, जब 38 रुपीज होने की बातें चल रही थी लास्ट 2 मंथ्स में, 2% प्रोडक्शन ऐसे ही बढ़ गया, फीडिंग प्रॉपर हुआ। एंड फार्मर कैन नॉट फीड द एनिमल कि मेरे घर की गाय है, ठीक है, बाहर से देखने के लिए दैट ऑल इज ओके, बट फार्मर को जब फीडिंग का प्रॉब्लम आता है तब ही हैज नो ऑप्शन। एंड इंडस्ट्री को भी सर्वाइव करना है।
जब as I am working in the dairy industry since last 30 years, मैंने वो भी रेट देखा है 38 रुपीज, 39 रुपीज, और ये भी रेट देखा है कि 18 रुपीज था रेट इन अ टाइम स्केल ऑफ ओनली 2 years. तो ये एवरीवन हैज अ प्रॉब्लम. फार्मर चिल्लाता है डेयरी हमको रेट देता नहीं, डेयरी बोलता है फार्मर का दूध अच्छा नहीं. सो दिस इज अ गुड point to discuss and understand each other. Then मैं जब अभी आपको बोल रहा था कि क्रॉस पेड का मिल्क यील्ड है और नॉन डिस्क्रिप्ट का मिल्क यील्ड है. देखिए मिल्क यील्ड इज ऑलमोस्ट हियर एंड देयर. 7.7 से 8.3 गया तो 10% भी बोलेंगे तो कम ही होता है. और मैंने आपको बोला कि 30 करोड़ एनिमल 60 करोड़ लीटर्स ऑफ मिल्क 2-3 लीटर का एवरेज है. तो टू कम अप ऑन दिस ओनली एक है कि फार्मर की इनकम को बढ़ाना पड़ेगा. कोई भी इंडस्ट्री अपने हिस्से में निकाल के कुछ देगा नहीं. दैट्स व्हाई हम फार्मर के साथ ये बात करना पड़ा. चेंज होता है जो मैंने लास्ट टिपिकली 10 years में देखा है. इफ वी कैन वर्क विथ फार्मर्स, यस, एंड स्पेशली व्हेन आई विजिटेड लास्ट टाइम दिस इन पंजाब. Yes, dairy companies are very open to pay the right rate and they are also getting right quality. So that Punjab culture we are trying to adopt and implement in Maharashtra. These are the 4 pillars of dairy development. Breed, yes, we need to help the farmer, and government is doing at their own job. That's why the in spite of lowering down the cow population, milk production is going up. So there is work is happening, but government जो कर रहा है, it is a thumb rule. Where the farmer want help from the industry is a specific चाहिए. जैसा गवर्नमेंट ने AI सर्विसेज 10 रुपीज को दे देते हैं. Even BIF is backed by government as a non-government organization. They are also giving a good price. बट अभी फार्मर को क्या चाहिए? सॉर्टेड सेक्स सीमन चाहिए. वो तो डेयरी वालों ने देना चाहिए, उसका कॉस्ट ज़्यादा है. बट what the cooperatives are doing and dairies like Schreiber, we are not doing. Because government also make differentiation while funding the dairies. Cooperatives are blessed, private people are affected. So that also this difference is there. But yes, at point of some time, apart from this breed improvement, अभी देखो फार्मर तो चेंज होते रहेगा. आपके पास उतना ब्रीड स्कोप भी नहीं है. एंड द बिगेस्ट लिमिटेशन इन सॉर्टेड सेक्स सीमन कि द डोज रेट इज वेरी हाई. कॉस्ट पर सीमन इज वेरी हाई. देन एनिमल शैल बी इन फर्स्ट 3 this in lactation. So AI is good one that government is doing, and farmers are also having the good knowledge of it. But still, to your surprise, still there 25 to 30% natural services are there in Maharashtra. And it is very common to recommend the natural services when there is a problem of repeat breeding. So by structure wise, this Maharashtra state is good, almost having 2000 class 1 level of dispensaries, and it is being provided. Second is the feed. Yes, farmer can do a lot on feed, and it can make the difference. Third one is the management. Management in animal husbandry. देखो मैंने छोटा सा काम किया. I was at Amul. Amul Maharashtra was focused on only the milk collection, but when I joined Schreiber in 2021, Schreiber milk is tested for all type of contaminants apart from adulteration. So we really we have a lot of business, but the quality milk is a big problem. In 10 lakh liter, 20% is not milk is not compliant to the international standard. So to avoid that, we studied in detail. The sickness rate in animal is just 4 to 5%, but the non-compliant rate of milk is 70 to 80%. Means 80% milk is non-compliant.
एफ्लोटॉक्सिन पॉजिटिव है, एंटीबायोटिक पॉजिटिव है, तो उसके लिए सिंपल इंटरवेंशन किया, लूज हाउसिंग प्रोमोटेड, प्रमोशन ऑफ लूज हाउसिंग। पहले किसने स्टैंडर्ड बनाया था मुझे नहीं मालूम नहीं, मिनिमम दिस पॉपुलेशन ऑफ एनिमल इज टू कंसिडर एज अ लूज हाउसिंग फार्म, एनिमल वेलफेयर फार्म इज 20, वो हमने 5 पे लाया। 5 पे लाके कि सिंपल कुछ मत करो, रिजल्ट्स आर फैंटास्टिक, मिल्क यील्ड ऐसे ही 10% से बढ़ गया। तो मैं कभी भी फार्म पे जाता हूँ तो फार्मर को बोलता हूँ, ये गाय के जगह पर मैं अगर होता ना और मुझे आप दिन भर बांधते रखते तो मैं उठा है कान के नीचे लगाता। समझो, यू नो, काउ इज आल्सो एनिमल, शी इज आल्सो हैविंग फीलिंग। उसको एक दिन में पानी, दिन में से दो तीन बार ही पानी पिलाते हैं। किसके घर में शादी गया तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। So that need to change, simple things that add to the sustainability. We tried community farming also. Good result. Those are really marginal. We tried where government has given grant for the purchase of this in cows to the ST farmers. So it also works. If you go to the farmer, सब कुछ पॉसिबल है, ऐसा कुछ ये पॉसिबल नहीं है वो नहीं है, बट सबसे बड़ा ये है उसका पैसा बचना चाहिए, एक नंबर। दूसरा, उसके दूध को अच्छा फार्मर शैल गेट अ गुड रेट एंड दिस इज कंट्रोल। गुड थिंग इज दैट नाउ फ्रॉम लास्ट ईयर 2024 गवर्नमेंट इज प्रोमोटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन फॉर द FMD. And government has also tried this LSD also, so that these are the good thing happening. But I believe in ethno-veterinary medicine, that I will come into detail. It's a fabulous, almost low cost, and what we treat the animal is available this resource with the milk producer. That is the main topic I will be talking on. And the biggest challenge, one more, is the treatment of parasites. Those are the license holders. Suppose BVS and AH veterinarians like me are already to practice the veterinary medicine, but in the state of Maharashtra, almost 10 times more diploma holder people are there. They don't know the P for the pharmacology, but they are prescribing the treatment. So this led to the antibiotic resistance, this led to the overall drop in production. So n number of problems are there. So breed is the only solution, but it's not immediate solution. Every farmer cannot make the changes of it. He cannot change the animals immediately, but continuous mentoring can help the farmer. Feed, good quality feed, fodder, and most importantly, even how to feed the animal is also need to this participate training to the farmer. Farmer believes he shall keep feeding animal whole day. कभी भी जाएगा थोड़ा सा कड़वाउडा का डाल देगा उसके satisfaction के लिए, rumination के लग गई. So that all one experience मैं आपको बताता हूँ. I was in महानंदा डेयरी, 12 साल था, तो मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया था प्रधानमंत्री फार्मर सहायता निधि में विदर्भ में 5000 काउज दिए थे एट अ कॉस्ट ऑफ ओनली 500 रुपीज। 40,000 रुपीज का कॉस्ट का काउ 500 रुपये में दिया था। तो वो 5000 काउज जो थे वो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम 2 साल चला। 2 साल के बाद डेयरी डेवलपमेंट कमीशन के साथ हम बात कर रहे थे, तो उन्होंने बोला यार डॉक्टर हमने तो एनिमल दे दिए, अभी क्या है उसका स्टेटस क्या है? तो बोलो वो तो अभी जाके देखना पड़ेगा। तो देखते देखते 3 साल हो गए। 3 साल में हमने जाका विदर्भा में जाके देखा किसको किसको दिया था। 30% लोग तो मिले ही नहीं, और जो मिले किसी के पास भी काऊ नहीं था। 10-15% काउस में भी देयर। वो काऊ का कंडीशन इतना बुरा था,
बॉडी स्कोर में भी लेस देन 2 और मे बी 1.5। प्रॉब्लम किधर था? वो लोगों को तो चाहिए था, ऐसे लोगों को सेलेक्ट करके काउस दिया था कि जो लोग काउ ले नहीं सकते हैं, उनका इतना बड़ा प्रॉब्लम हुआ। तो डीप डाइव करने के बाद मालूम हुआ कि उनको मिल्किंग करना नहीं आता है, फीडिंग करना नहीं आता है। फिर हमने वो गया जो लोकल वहाँ के जो वेटरनरी ये डिस्पेंसरी जिन्होंने ये काउ का सब डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम ये के इम्प्लीमेंट किया था, तो हमने देखा वो वहाँ पे रहते ही नहीं है। all doctors are staying in city areas, children education है, ये है वो है। तो because of only non training on animal husbandry practices, गवर्नमेंट का पूरा स्कीम का पैसा चला गया। So this is importance of management। ये तो बहुत आगे की बात है। तो मैनेजमेंट है ना, अच्छा मैनेजमेंट से ऐसे 15-20% आपको दूध अच्छा मिलेगा। Now I will come to the animal welfare। It's my मुझे सबसे अच्छा जो लगता है फार्मर के साथ बात नहीं करता हूँ, तो एटलीस्ट मैं महीने में एक 10-12 फार्मर को जाके मिलता हूँ, उसको समझाता हूँ कि ये बांधना बिनना बंद कर दो। एंड वेरी सिंपल, मैंने 10,000 रुपये में 10 गाय का फार्म डेवलप किया है, बाम्बू लगा दिया, और होल्स्टीन फ्रिजियन इज सच ए गुड ब्रीड। एक बार उसको मालूम हुआ ना यहाँ पे ऐसा बॉर्डर है, मेरा बाहर जाती नहीं हो, वेरी डोसाइल एनिमल। तो 10,000 रुपये में आप अभी आगे देखेंगे, ये टिपिकली ये AW फार्म है, इट इज विद कंपार्टमेंट्स। सो सिंपल है, काउ कंफर्ट, कि काउ का बांधना नहीं है, 24/7 वाटर देना है, अच्छा बेडिंग देना है। बेडिंग देना है मीन्स ये देखो, ये फार्म में कोई बेडिंग नहीं है नीचे, एक्सेप्ट दिस रेनी सीजन कुछ नहीं है उस पर, डंगी ड्राई होके अच्छा बेडिंग बना है, पानी देना है, खाना देना है, वेरी सिंपल। मीन्स AW फार्म एनिमल वेलफेयर प्रिंसिपल बड़ी बड़ी बातें है, इट इज रिक्वायर्ड, बट इम्प्लीमेंटेशन में बहुत इजी है। 1,000 रुपीज पर काउ इज नॉट अ बिग अमाउंट फॉर यू, बट आप अगर देखेंगे आगे कि उसका रिजल्ट क्या है। ओके, आई विल कम टू द 4 डिफरेंट प्रोविजंस। इतने करना है, पानी देना है, अच्छा खाना देना है, वो तो आप देते हो, उसके पास कोई पैरामीटर भी नहीं देने के लिए, जो भी खिलाओ 2 टाइम खिलाओ, प्रिवेंट हेल्थ केयर डॉक्टर को बुलाओ, कंफर्टेबल बेडिंग होता है, ऑटोमेटिक तैयारी हो जाती है, एंड बांधो मत। सबसे बड़ा है, लास्ट का प्रोविजन सबसे बड़ा है, डोंट टाइट द काउ थ्रोट, बांध के मत रखो। एंड उसका आप देखो, ये 5 फ्रीडम्स है, आई विल नॉट गो इनटू मच, बट इट इज सेम ओनली 4 provision, 5 freedoms are same. Cow, this in cow, this comfort only. Freedom for distress, freedom for pain, injury, disease, freedom from discomfort due to this environment. बारिश हो रहा है तो थोड़ा सा अंदर बांधो. And freedom for hunger, भूख लगे टाइमली आप उनको ये करो, न्यूट्रिशन दे दो. And express a normal behavior. Very simple है, but इसका रिजल्ट देखिए आप. This is a solution for the better this welfare, better yield, low profit. See, this is a practical table, practical experience. I have 1,600 such farms developed under my leadership. मैं एक फार्म को जानता हूँ। ये फार्म का स्टडी करने के बाद ही मैं जो आपको पहले डेटा बोला, कॉस्ट ऑफ मिल्क प्रोडक्शन ₹21 per liter to ₹46 per liter. It's because of the breed, feed, and see here, ये 2023 का फार्म है, 2022 आफ्टर जस्ट कोविड, मे बी दिस इज 22, 7 एनिमल हो गए। पहले देखिए, ओके, सो हार्ड से उसका 7 था, 15 हो गया, 3 years स्पैन। मिल्किंग एनिमल 5 to 8 हो, उस 5 के बाद में 8 हुए। मिल्क प्रोडक्शन 50 to 120,
एवरेज मिल्क यील्ड में देखिए आप 10 लीटर पर डे था, वो 50 लीटर हुआ, एवरेज मिल्क यील्ड पर काउ। फंटास्टिक ये है, रिजल्ट है इसका। अंडर कुछ नहीं है, एक एनिमल को 1-2 हज़ार रुपये खर्चा करके उसने रेगुलर ट्रेडिशनल फार्म टू AW फार्म उसके सिर्फ ये किया, मीन्स कन्वर्ट करके पानी दिया, फैट देखो, इसमें अब देखो ट्रीटमेंट कॉस्ट देखिए 67 रुपीज़, जो पहले उसका 714 था। वर्किंग आवर्स भी आधा हो गया, गांव में जाके थोड़ा सा घूम सकते हैं। देखो दिस इज इथ्नोवेटरनरी मेडिसिन मोस्ट इफेक्टिव इन 12 टाइप ऑफ डिसीजेस। मस्टाइटिस जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है फील्ड में, इफ यू एनालाइज द डिसीज इंसिडेंटेड इन ओवरऑल 1 year, 70% केसेस बिलोंग टू द मस्टाइटिस। और मस्टाइटिस में इतना इफेक्टिव है, उसका कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट मस्टाइटिस घर पे करेगा कुछ नहीं। उसको क्या लेना है, एलोवेरा, हटजोड़, दैट इज हर्ब ओनली, चूना, हल्दी, कड़ी पत्ता, हो गया। इफिकेसी रेट आप अगर देखेंगे यहाँ पे मस्टाइटिस के लिए 99% है। एंड सी all the diseases, teeth obstruction, crack, warps, FMD, you know, all kind of diseases, it's very good. And सबसे आश्चर्यकारक बात यह है, ये सब सिलेबस में नहीं है। मैंने BBC किया तब भी नहीं था, रिसेंटली चेक किया, फिर भी नहीं है। And one thing that may be that pharmaceutical industry may found it challenging. मस्टाइटिस ट्रीटमेंट के लिए नॉर्मल फार्मर को 7-8 हज़ार रुपये लगता है, 6,000 तो लगेगा ही लगेगा। 6,000 की बात है 50 रुपये में होती है। और देखो 6,000 का कॉस्ट, इसका मतलब क्या हुआ, 6,000 रुपये मीन्स एवरेज हम देखेंगे तो 3,000 लीटर मिल्क कम आता, 7-8 लीटर भी हम अगर देखेंगे तो देखो 2 रुपए से 3 रुपए पर लीटर उसका पहुंच जाता है मस्टाइटिस के लिए। दैट इज इम्पोर्टेंट कि लिटरली शाइबर अभी तक मैंने 50,000 बुकलेट्स इसका प्रिंट किया है। इफ एनीवन वांट इट आई कैन शेयर ऑन दिस व्हाट्सएप। कैलेंडर्स में जो भी फार्मर को देता हूँ ना, महाराष्ट्र में ट्रेडिशन है कि दीपावली को आप ग्लास देते हो तो उसके साथ में ग्लास के साथ एक बुक मैं उनको दे देता हूँ। स्ट्रॉबेरी के कौन से भी मिल्क कलेक्शन सेंटर पे जाओ आपको वहाँ पे 25-50 बुक्स मिलेंगे, बिकॉज आई स्ट्रांगली बिलीव, मैं देखा है। एंड स्ट्रॉबेरी डायनेमिक्स में वी आर कलेक्टिंग 10 lakh liters ऑफ मिल्क पर डे। आई हैव 40,000 मिल्क प्रोड्यूसर सप्लाइंग मिल्क टू मी। अराउंड 700 बल्क मिल्क कूलर्स है। सबके घर में जाओगे तो आपको मिलेगा। एंड ये सब काम करने के लिए व्हाट द इंडस्ट्री दिस कंट्रीब्यूशन चाहिए। आई हैव मोर देन 100 एक्सटेंशन ऑफिसर्स एंड उसमें 70% आर द वुमेन्स। वेरी सिंपल है। हमने पहले बेल्स ट्राई किया 2021-22 में, घर में जाके बात करने का प्रॉब्लम होता है बेल्स को। और इन महाराष्ट्र मेनली फीमेल्स आर 90% ऑफ द फार्म्स आर ओन बाय दिस फीमेल। डेयरी प्रोडक्शन में फीमेल ही ज़्यादा है। तो पहले हमारा 8-10 मेल्स था, वो बाहर जाके वो उसके पति के साथ बात करके आता था, कुछ नहीं होता था। बाद में हमने 10 फीमेल एक्सटेंशन का ट्राई किया, उनको समझाया। अभी वो घर में जाके खाना उसके साथ ही खाना खा के रेसिपी बना के लगा के आ जाती है। Mastitis reduced the form 19% to 5%, biggest success. And एक बार mastitis हुआ तो उस पर मीन्स इतना फार्मर परेशान हो जाता है। ये जो मैंने बोला ना टीथ ऑब्स्ट्रक्शन है, no animal became completely debilitated. Sometimes 4 में का एक टीथ वो मीन्स उसमें ये होता चला जाता है।
सो फार्मर्स इकोनॉमी क्रश करने के लिए सबसे बड़ा फार्मर का दुश्मन है मस्कैटिस। उसके लिए ईवीएम इज वर्किंग 99%। तो ईवीएम के बारे में बहुत सारा इट इज अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन, यूट्यूब पे जो आपको मिलेगा, सब तरह पे अवेलेबल है। एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्रमोट इट। यूट्यूब में आप इधर उधर देख लेंगे तो आपको मिल जाएगा। मेरा नंबर भी दिया है, तो वहाँ पे भी आप मुझे पूछेंगे तो आपको आई विल बी हैप्पी टू प्रोवाइड यू। इट्स द बेस्ट। अभी जो फार्मर को ईवीएम करने के लिए कुछ प्रॉब्लम है तो उसके लिए रेडी टू यूज दिस थेरेपीज पे है। उसका कॉस्ट इज ऑलमोस्ट 5 times मोर। सपोज मस्कैटिस के लिए अगर 50 रुपये लगता है तो ईवीएम आरटीयू के रेडी टू यूज पाउडर्स आते हैं तो उसके लिए 300 रुपये लगता है। बट इफेक्टिव आप अगर ये करके देखेंगे तो रेडी टू यूज जो घर में बना के लगाएंगे, कुछ नहीं 15 बार लगाना है, दिन में 3 बार 5 दिन। इट विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। इवन एलएसडी में भी अच्छा है, एफएफडी में अच्छा है इसका रिजल्ट। सो थैंक यू।